Hi dear students, my name is Bhavesh Agrawal. In the last lecture we have discussed about the phase transition. There are types, that is the first order phase transition and the second order phase transition, and also the first order phase transition in detail. Today we will discuss about the second order phase transition in detail. So for the second order phase transition there are two conditions to satisfy. First one is that there is no change in the entropy and the volume. That is, for phase 1 S1 equals to S2, that is the entropy, and V1 equals to V2. Okay, so there will be no change in the entropy and the volume. And the second condition is discontinuity appears in the specific heat, that is the Cp, at the constant pressure and the isobaric volume expansion. These two conditions must be satisfied by the second order phase transition. As the earlier discussion, we have the Clapeyron equation. Remember, the Clausius Clapeyron equation is given by dP upon dt equals to L upon T V2 minus V1, and where L equals to T S2 minus S1. Okay, S1. If there will be no change, what is the first condition? There will be no change in the entropy as well as the volume. If you put the value of S2 and S1, this becomes 0, that is the denominator will become 0 and as well as the numerator will become also 0. Therefore, the above equation will be as 0 upon 0, which is the indeterminate. For thus the dP upon dt is no longer exists for the second order phase transition. From this we can say that the Clausius-Clapeyron equation is no longer valid for the second order phase transition. Okay, from this equation we can say that. Here then the scientist Ehrenfurst utilized the equalities between the entropy and the volume. So Ehrenfurst considered that the entropy are equal or the volume are equal for the second order phase transition, and that equation is known as the Ehrenfurst equation. So अपन दोनों भी ले सकते हैं. एक तो अपन ले सकते हैं कि एंट्रोपी कांस्टेंट रखो, दैट इज S1 इक्वल्स टू S2 रखो, या फिर अपन वॉल्यूम में ले सकते हैं कि वॉल्यूम V1 इक्वल्स टू V2 रखो. अपन दोनों भी कंडीशन से सॉल्व करेंगे. अपन सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जब एंट्रोपी कांस्टेंट रहता है तो अपने को कौन सा इक्वेशन मिलता है. ओके, द एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू Ehrenfurst. द entropy remains constant. Okay, remains constant. ये अपना केस 1 है. ओके, यहाँ पे क्या कांस्टेंट रखा है अपन ने? एंट्रोपी कांस्टेंट रखा है. ठीक है. सो S1 इक्वल्स टू, सो फॉर अ चेंज, सो फॉर द फेजेस, ओके, सो फॉर द फेजेस at T and P, that is the temperature and pressure, the entropy is given by S1 equals to S2. Clear? Second, अगर मेरा टेम्परेचर और प्रेशर बाय एन अमाउंट ऑफ चेंज होता है, अपने कल भी देखा था, टेम्परेचर बाय एन अमाउंट कितना चेंज होता है dt, और प्रेशर कितना अमाउंट चेंज होता है dP. सो द टेम्परेचर इज चेंजेस बाय T plus dt and the pressure is changes by P plus dP. सो अपना एंट्रोपी भी क्या हो जाएगा यहाँ पे? S1 plus ds1 इक्वल्स टू S2 plus ds2. जब मेरा टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है बाय एन अमाउंट ऑफ
dt एंड dp, तो मेरा एंट्रोपी भी मोस्टली मेरा चेंज होगा बाय ds1 एंड ds2। इसके ऊपर से अपन ऐसा बोल सकते हैं therefore ds1 इक्वल्स टू ds2 एज s1 इक्वल्स टू s2। जब मेरा s1 इक्वल्स टू s2 है तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरा जो डेरिवेटिव है दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द s1 एंड s2 आर मस्ट बी इक्वल। क्लियर? फिर अपन लेते हैं ओके, अपन लेते हैं टेक s एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। टेक s एज डिपेंडेंट variable. Okay, take S as dependent variable and T and P are independent variable. Which one? Independent variable. Okay, so we can write S equals to S of T comma P. Okay, now simply differentiate these partial differentiation. Take the partial differentiation, जैसा अपन ने कर लिया था सेम वैसे ही रिपीट करना है। टेक पार्शियल डेरिवेटिव, तो अपन ने देखा था पार्शियल डेरिवेटिव होने के बाद में अपन यहाँ पे कैसा आता है ds इक्वल्स टू दो t बाय दो s अपॉन दो t एट कांस्टेंट क्या आता है प्रेशर इनटू dt प्लस दो s बाय दो p एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dp। ओके, ds एज इट इज यहाँ पे आता है क्योंकि ये इसके ऊपर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है बट s इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। सो क्या आएगा यहाँ पे बेटा कि दो s अपॉन दो t एट कांस्टेंट प्रेशर इनटू dt प्लस दो s बाय दो p एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू dp। सिंपली मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन बाय t। So simply multiplying t on both sides, okay, अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पे t से मल्टीप्लाई करूंगा तो t ds, ओके, फिर यहाँ पे भी आएगा t दो s बाय दो t एट कांस्टेंट p इंटू dt प्लस फिर से यहाँ पे भी t से मल्टीप्लाई होगा, राइट? सो दो s अपॉन दो p एट कांस्टेंट टेम्परेचर इंटू dp। ओके, इज दैट क्लियर? अपन ने क्या लिया है क्विकली इसके ऊपर देखा कि अपन ने बोला कि रिमेन्स अपन क्या कांस्टेंट रख रहे हैं, अपन कांस्टेंट क्या रख रहे हैं यहाँ पे एंट्रोपी कांस्टेंट रख रहे हैं, दैट इज s1 इक्वल्स टू s2। अपन वॉल्यूम भी रख सकते हैं, वो अपन बाद में देखेंगे। सो फॉर द फेजेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर T एंड P, S1 द एंट्रोपी इज S1 इक्वल्स टू S2। फिर जैसे कि अपन ने बताया कि मेरा टेम्परेचर dT से चेंज हो रहा है, मेरा प्रेशर dP से चेंज हो रहा है। इन द सेम केस फिर S1 भी मेरा चेंज होगा, S2 भी चेंज होगा। तो S1 कितने से चेंज हुआ ds1 से, और S2 कितने से चेंज हुआ ds2 से। तो यहाँ पे ds1 इक्वल्स टू ds2 एज s1 इक्वल्स टू s2। फिर अपन ने क्या किया है, एक s इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल लिया है और t एंड p आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो s इक्वल्स टू s t कॉमा p। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव अपन ने कल जैसा लिया था वैसे भी आज लेंगे। सो क्या आएगा ds इक्वल्स टू दो s बाय दो t एट कांस्टेंट p इंटू dt प्लस दो s अपॉन दो p एट कांस्टेंट t इंटू dp। ये आ गया। फिर अपन ने क्या किया है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई किया है कैसे t से। So multiplying t on both sides, therefore we get t into ds equals to t ds by dt at constant pressure dt plus t dou s by dou p at constant temperature into dp. Okay. अब आगे अपन क्या करेंगे देखते हैं। But we know that. But we know that अपने को क्या पता है, Cp इक्वल्स टू T दो S अपॉन दो T
डॉट टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर होता है। अपने को पता है ना, द स्पेसिफिक हीट क्या रहता है, T इंटू डो एस बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर एंड अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन। कौन सा? मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन, मैक्सवेल्स सेकेंड रिलेशन, मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन। मैक्सवेल सेकेंड रिलेशन क्या मिलता है अपने को, डो एस अपॉन डो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इक्वल्स टू माइनस ऑफ डो वी अपॉन डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सो अपने को मिल गया है सीपी, दैट इज स्पेसिफिक हीट, T into dou S by dou T at constant pressure and the Maxwell from the Maxwell second relation. From the Maxwell second relation से क्या मिला है, dou S by dou P at constant temperature equals to minus of dou V upon dou T at constant pressure. अब CP और ये वाला रिलेशन ये वाले इक्वेशन में पुट करो, इसको इक्वेशन नंबर में 1 दे देता लगे तो, ठीक है। अगर मैं इक्वेशन 1 में ये वाला और ये वाला पुट करता हूँ तो मेरा इक्वेशन 1 कैसा बनेगा, यहाँ पे देखो T इंटू डी एस एज इट इज है, लेफ्ट हैंड साइड में तो कुछ भी चेंज नहीं आएगा। अब देखो T डी एस बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर को क्या बोले हुआ है, Cp, दैट इज Cp इज द स्पेसिफिक हीट। सो क्या हो जाएगा Cp इंटू डी टी, ओके। फिर क्या है, प्लस T है, लेकिन डो एस बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर को क्या बताया, मैक्सवेल के रिलेशन से माइनस डो वी बाई डो टी होता है। क्या होता है, माइनस डो वी बाई डो टी, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा T इंटू डो वी बाय डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर इंटू क्या है मेरा dP, ठीक है। समझ में आ गया क्या किया अपन ने, सिर्फ Cp और ये वाली वैल्यू दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, तो अपने को क्या मिला, लेफ्ट हैंड साइड तो सेम रहेंगी, दैट इज T ds इक्वल्स टू Cp इंटू dt, माइनस क्यों आया, क्योंकि ये वाला माइनस था, ठीक है। T एज इट इज किया, डो एस अपॉन डो पी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे मैंने क्या पुट किया है, सिंपली dou v by dou t at constant pressure and dP is at ओके क्लियर। बट अपने को यहाँ पे एक और चीज पता है, अपने को क्या पता है यहाँ पे, बट अल्फा बीटा, व्हाट अल्फा बीटा volume coefficient of expansion, what is volume coefficient of expansion, ओके। इसकी वैल्यू कितनी है बेटा, देखो इसकी वैल्यू है 1 अपॉन वी डो वी बाय डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, मतलब अल्फा इक्वल्स टू क्या आ गया है, 1 अपॉन वी डो वी अपॉन डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। अपने को ये वाला है, देखो डो वी बाई डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर है, अपने को ये वाली वैल्यू निकालना है, तो अपन सिंपली क्या करेंगे, वी को इधर लेके आ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा, डो वी अपॉन डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या हो जाएगा मेरा, अल्फा वी, सीधा। बाद में फिर अब ये वाली वैल्यू ये वाली इक्वेशन में पुट कर दो, ठीक है। Therefore, the equation 2 implies, ठीक है, इक्वेशन 2 implies क्या हो जाएगा, देखो ये वाला तो वैसे ही रहेगा, E ds इक्वल्स टू यहाँ पे क्या है Cp dt, ये भी वैसे ही रहेगा Cp dt, चेंज है ना, माइनस भी वैसे ही रहेगा, फिर T भी वैसे ही रहेगा, सिर्फ चेंज कहाँ पे हो रहा है, डो वी अपॉन डो टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या बता रहा है बेटा, अल्फा वी इंटू डी टी, इसकी वैल्यू कितनी है, अल्फा वी, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं अल्फा वी, क्या बाकी है इधर से क्या बाकी है, सिर्फ डो पी बाकी है ना, डी पी, तो अपने डी पी लिख लिया, ठीक है। इसके ऊपर से आप डी एस निकाल सकते हो सिंपली, डी एस निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, ये टी को इधर लेके आएंगे, ये टी इधर आएगा, डिवाइड में होगा, तो सी पी, यहाँ पे तो टी है नहीं, तो क्या हो जाएगा सिंपली सी पी डी टी अपॉन टी, ये टी इधर आ गया, माइनस ये टी इधर भी डिवाइड होगा, तो ये वाला टी और ये वाला टी क्या हो जाएगा यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे सिंपली क्या मिलेगा अपने को, अल्फा वी डी पी, ठीक है। ये आ गया अपना डी एस इक्वल टू कितना मिला अपने को, सी पी डी टी बाई टी माइनस
अल्फा वी डी पी। ठीक है, अपने को ds मिल गया तो अपन ds1 भी निकाल सकते हैं, ds2 भी निकाल सकते हैं। दैट इज फॉर द फेज 1 एंड फेज 2। कैसे निकालेंगे अपन देखते हैं। अपने को क्या मिला है ds, अपने को इसके ऊपर से क्या निकालना है ds1 और ds2। तो अपन सबसे पहले क्या निकालते हैं ds1 फॉर फेज 1। ठीक है, cp है तो cp भी 1 हो जाएगा मेरा। ठीक है, dt बाई टी तो उतना ही रहेगा, उसमें तो कुछ भी चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर उतना ही रहेगा। माइनस अल्फा 1 हो जाएगा, सही है, अल्फा 1 हो जाएगा। वैसे तो वॉल्यूम भी 1 होना चाहिए, लेकिन वॉल्यूम 1 क्यों नहीं होगा, एलन फर्स्ट ने पहले ही बताया है कि एक तो वॉल्यूम भी सेम रहता है और एंट्रोपी भी सेम रहता है। सो V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू क्या होगा अपना V। इसलिए मैं यहाँ पे 1 और 2 कुछ भी नहीं लिखूंगा, यहाँ पे मैं सिंपली V क्यों लिखूंगा, क्योंकि अपने को पहले ही कंडीशन बताया है कि V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V। क्लियर, ये आगे ds1 सेम आप ले लो ds2 के लिए ले सकता हूँ मैं। ds2 के लिए क्या आएगा Cp2 dt अपॉन t माइनस अल्फा 2 आएगा सेकेंड के लिए। V2 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू क्या बताया V इंटू dt। अब अपन स्टार्टिंग में देखे हैं ds1 इक्वल्स टू क्या है ds2। अब अपन ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर सकते हैं यहाँ पे। चलो ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 दे दो। क्या करेंगे अपन इक्वेटिंग इक्वेशन 3 एंड 4। अब इसको इक्वेट करने के बाद में क्या मिलेगा देखो, अगर अपन इसको इक्वेट किया तो क्या मिलेगा। ठीक है, अब अपन इसको इक्वेट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है देखो ds1 क्या है Cp1 dt बाय dt माइनस अल्फा 1 v dt इक्वल्स टू द कितना है Cp2 dt बाय dt माइनस अल्फा 2 v dt। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड में ये आ गया, राइट हैंड साइड में ये आ गया। अब देखो दो वेरिएबल है, एक है dt है और एक है अपना dp है। दोनों को एक साइड में लेके आओ, dp को सेपरेट कर दो, dt को सेपरेट कर दो। चलो तो अपन ये नेगेटिव में है, ये वाला नेगेटिव है तो इसको इधर ला दे तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फिर देखो अल्फा 2v dt नेगेटिव इधर आया तो क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। ये तो ऑलरेडी नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव क्या है अल्फा 1 dt v dt इक्वल्स टू, ये तो पॉजिटिव है, इसको वैसे के वैसे लिख लो पहले Cp2 dt अपॉन t। बाद में ये पॉजिटिव है, ये इधर गया तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो इसको डाल दो Cp1 dt अपॉन t। अब देखो इसमें से कॉमन आउट क्या निकलता है v और dp कॉमन निकलता है। ठीक है, तो मैं v dp यहाँ पे कॉमन निकाल देता हूँ। क्या रहता है सिर्फ अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। यहाँ पे क्या कॉमन निकलता है dt बाई t कॉमन निकलता है। तो यहाँ पे क्या रह जाएगा सिंपली Cp2 माइनस Cp1। ओके, सो Cp2 माइनस Cp1। अब क्या करने का है, अपने को इन द फॉर्म ऑफ क्या चाहिए dp और dt चाहिए, कर लो dp अपॉन dt। तो यहाँ पे क्या मिलेगा सिंपली देखो Cp2 माइनस Cp1 ये ऊपर है, नीचे ऑलरेडी क्या है t है। अब यहाँ पे का क्या बाकी है सिर्फ ये वाला बाकी है और अल्फा वाली टर्म बाकी है, उसको इधर लेके चल जाओ मल्टीप्लाई में। तो ये क्या हो जाएगा t इंटू वी अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 dt अपॉन dt। हाँ, dt अपॉन dt इक्वल्स टू क्या मिला है Cp2 माइनस Cp1 अपॉन में t v अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन। ये हो गया मेरा फर्स्ट सेकेंड ऑर्डर के लिए। दिस इक्वेशन holds for the second order phase transition. Okay, second order phase transition. ठीक है,
ये हो गया सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन के लिए। और इसको यही कौन सा इक्वेशन बोलते हैं, एरेनफर्स्ट इक्वेशन। कौन सा, एरेनफेस्ट इक्वेशन, एरेनफेस्ट इक्वेशन। अगर अपन ने ध्यान दिया तो अपन ने यहाँ पे क्या लिया था, पहले स्टार्टिंग में कौन सी कंडीशन थी, वॉल्यूम और एंट्रोपी सेम रहना चाहिए। तो अपन ने यहाँ पे क्या लिया था, अपन ने सबसे पहले यहाँ पे एंट्रोपी सेम लिया था। तो फॉर द एंट्रोपी अपन ने सेम लिया तो अपने को dp अपॉन dt क्या मिला, dp अपॉन dt इक्वल्स टू cp2 माइनस cp1 अपॉन t इंटू v अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। इसी को कौन सा इक्वेशन बोलते हैं, एरेनफेस्ट का फर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। और ये इक्वेशन किस कौन से ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर के लिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए नहीं है। फर्स्ट ऑर्डर के लिए कौन सा था, कॉजियस क्लेपेरॉन इक्वेशन। अभी अपन क्या करेंगे, अपन अभी वॉल्यूम को सेम रख के सेकेंड इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। सो अभी तक अपन ने एंट्रोपी सेम रखा था, अपन अब सेकेंड इसमें रखेंगे, वॉल्यूम सेम रखेंगे। सेम ही है दोनों भी, दोनों में से कोई भी एक लिखा तो भी चलता है, ठीक है। सेम वैसे ही है, आप वॉल्यूम के दो रख लो। सो लिखता हूँ मैं डी वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। क्या कांस्टेंट है मेरा अभी, वॉल्यूम कांस्टेंट है। सो फॉर द फेज, सो फॉर ए फेज जैसे अपन ने एंट्रोपी में किया है वैसे ही अपन सेम काय में करेंगे, वॉल्यूम में करेंगे। फेजेस टी एंड पी क्या था, यहाँ पे एंट्रोपी सेम था, यहाँ पे क्या सेम रहने वाला है, वॉल्यूम। सो v1 इक्वल्स टू vt। बाद में अपन क्या था, जब मेरा टेम्परेचर बाय द अमाउंट ऑफ dt चेंज हो रहा है एंड प्रेशर बाय एन अमाउंट ऑफ dp चेंज हो रहा है, तो मेरा ऑब्वियसली वॉल्यूम भी चेंज, v1 भी चेंज होगा उस टू बी अमाउंट से और v2 भी चेंज होगा उस टू बी अमाउंट से। तो v1 कितना से चेंज होने वाला है बेटा, यहाँ पे v1 प्लस dv1 से, और v2 कितने से चेंज होने वाला है, v2 प्लस dv2। इसके ऊपर से अपन बता सकते हैं therefore dv1 इक्वल्स टू क्या रहेगा मेरा, dv2 एज v1 इक्वल्स टू v2। जब मेरा v1 इक्वल्स टू v2 है तो ऑब्वियसली मेरा dv1 और dv2 भी सेम रहेगा। समझ में आया तक। अभी अपन क्या करते हैं, जैसे वहाँ पे अपन ने एंट्रोपी के लिए किया था, यहाँ पे अपन वॉल्यूम के लिए करेंगे। तो अपन क्या करेंगे, टेक v एज डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। अपन ने अभी क्या किया है, v डिपेंडेंट वेरिएबल किया है, और अपन t एंड p कैसे लेंगे, एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। विच वन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो अपन इसको कैसा लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू v ऑफ t प्लस t कॉमा p। सेम वही लो, पार्शियल डेरिवेटिव करो। पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आ जाएगा, dv इक्वल्स टू दो v अपॉन दो t एट कांस्टेंट प्रेशर इंटू dt प्लस दो v अपॉन दो p एट कांस्टेंट टेम्परेचर dp। ठीक है, अब अपन ने पिछले इक्वेशन में देखा है दो v बाई दो t क्या रहता है, क्या रहता है, अल्फा रहता है। अल्फा क्या रहता है, बट अपने को पता है ना, अपने देखा है अल्फा इक्वल्स टू क्या रहता है, 1 अपॉन v इंटू दो v बाय दो t एट कांस्टेंट प्रेशर। देखा है ना अपने, पिछले इसमें देखा है। और इसी को क्या बोलते हैं, वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन। वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपांशन बोलते हैं इसको। ठीक है, ठीक है। और अपने को ये भी पता है कि दो v बाई दो p क्या मिलता है, एंड उसको क्या बोलते हैं, केटी। केटी क्या है, अपने को ये भी पता है कि आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी है। आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी है। ओके, इसकी वैल्यू कितनी आती है बेटा, दो v बाई दो t। मतलब यहाँ पे क्या आएगा, ये वाले क्या आ रहा है,
माइनस 1/v dou v बाय dou p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, अब ये वाली इसके ऊपर से आप dou v बाय dou t एट कांस्टेंट प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हो, इसके ऊपर से आप dou v बाय dou t एट कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू निकाल सकते हो। ये दोनों वैल्यू निकाल के अपने को क्या करना है, सिंपली ये वाली इक्वेशन में पुट करना है। सो इक्वेशन नंबर आई थिंक ये वाला होगा 5। ठीक है, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 5। ठीक है, अब ये वाली वैल्यू आप निकाल सकते हो, ये वाली वैल्यू भी आप निकाल सकते हो। ये वाली वैल्यू क्या मिल जाएंगे मेरे को, सिंपली अल्फा v। सो लेफ्ट हैंड साइड जो मेरा है dv मैं उसको वैसे ही रखता हूँ। ठीक है, dou v बाय dou t क्या मिल जाएगा मुझे यहाँ से, अल्फा v। सही है, और क्या रह जाएगा फिर यहाँ पे, सिर्फ dt रह जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्लस है बट यहाँ पे कौन सी माइनस है, तो dou v बाय dou p एट कांस्टेंट टेम्परेचर क्या मिल जाएगा मुझे, माइनस v kt। सही है ना, सो माइनस v kt, और क्या रहेगा यहाँ पे dp रहेगा, उसको dp को वैसे लिख दो। ठीक है, ये हो गया मेरा dv। अब इसके ऊपर से मैं dv1 और dv2 निकाल सकता हूँ। dv1 क्या रहेगा फेज 1 के लिए, dv2 क्या रहेगा फेज 2 के लिए, तो निकाल लो dv1। ठीक है, dv1 निकालता हूँ तो क्या हो जाएगा, अल्फा 1 हो जाएगा। v1 होगा क्या, नहीं, क्योंकि वॉल्यूम क्या बताया हुआ है, कांस्टेंट है। v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू क्या है, v है। सो v1 इक्वल्स टू v2 इक्वल्स टू क्या है, v है। तो यहाँ पे सिर्फ सिंपली v रहेगा, dt यहाँ पे तो नहीं चाहेगा, आपको पता ही है। v है क्या, kt 1 आ जाएगा और इंटू क्या आएगा dp। ये हो गया 1 के लिए, सेम निकाल लो 2 के लिए क्या आएगा, अल्फा 2 v dt माइनस v kt2 सॉरी kt2 इंटू dp। ठीक है, अभी अपने को पता है, जैसे अपन ने पिछले इक्वेशन में भी किया था, एज अपन क्या कर सकते हैं, therefore dv1 इक्वल्स टू dv2 है। तो अपन इन दोनों, ये दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेशन अपन इक्वेट करके हम लोग क्या मिलेगा देखते हैं। चलो चलो अभी ये दोनों इक्वेशन इक्वेट करते हैं, देखते हैं क्या मिलता है। dv1 क्या है बेटा, देखो अल्फा 1 v dt माइनस v kt1 dp इक्वल्स टू, ये हो गया मेरा फर्स्ट। dv2 क्या है, देखो अच्छे से, अल्फा 2 v dt माइनस v kt2 dp। सेम यहाँ से क्या कॉमन निकलता है, कॉमन निकलता है, देख लो क्या कॉमन निकलता है, पहले क्या निकलता है यहाँ से, या फिर हाँ यहाँ से कॉमन ले लो पहले, क्या है कॉमन, सॉरी कॉमन है v dt कॉमन है। ओके, ऐसा करने से अच्छा अपन ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले, हाँ जैसा अपन ने पिछले इक्वेशन में किए थे, अपन अभी भी वैसे ही करते हैं कि dt वाली टर्म्स एक साइड में ले लो, dp वाली टर्म्स एक साइड में ले लो। तो अगर मैं dp वाली ये वाली टर्म्स इधर लेता हूँ तो प्लस हो जाएंगी, तो क्या हो जाएंगी, v kt2 dp माइनस ये वाली टर्म यहाँ पे एज इट इज जाएंगी 1 dp इक्वल्स टू क्या बनेगा मेरा, ये तो प्लस में है, सो अल्फा 2 v dt, ये वाली प्लस है, इधर जाएंगी तो माइनस हो जाएंगी, क्या होंगी अल्फा 1 v dt। अब इसमें से क्या कॉमन निकलता है, निकाल लो, क्या निकलेगा, v भी निकलेगा और dp निकलेगा, निकाल लो, v dp कॉमन है, क्या रहता है फिर 2 माइनस kt1। ओके, यहाँ से भी क्या क्या कॉमन निकलेगा, v और dt, v dt कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। सो यहाँ पे लिख लो अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, v दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएंगे,
और अपने को क्या चाहिए इन द फॉर्म ऑफ dp अपॉन dt। सिंपली क्या करो आप dp अपॉन dt। dt तो अपने को इधर का क्या रहेगा, ऊपर क्या रहेगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1, और यहाँ पे क्या बन जाएगा फिर यहाँ पे ये वाला इधर साइड के नीचे चल जाएगा। सो kt2 माइनस kt1, दिस इज द एरन फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन व्हेन द वॉल्यूम आर द सेम, दैट इज द वॉल्यूम v1 और v2 जब सेम रहेगा तो dp अपॉन dt कितना रहेगा अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 अपॉन kt2 माइनस kt1। ठीक है, यहाँ पे अल्फा क्या है अपना आइसोबैरिक एक्सपेंशन था वॉल्यूम, और kt क्या है अपना यहाँ पे आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी है। तो ये वाला इक्वेशन भी काय के लिए है सेकंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन व्हेन द वॉल्यूम आर कांस्टेंट। तो एरन फर्स्ट के अपने को कितने इक्वेशंस मिले हैं, 2 इक्वेशन मिले। अपन थोड़ा सा लिख लेते हैं शॉर्ट में कि अपने क्या किया है आज। हाँ क्या किया है, एक सेकेंड। when entropy constant, when entropy is same, जब एंट्रोपी सेम था सेम, सो अपने को क्या मिला है dp अपॉन dt कितना मिला था अपने को, जब अपन ने एंट्रोपी सेम रखा था तो क्या मिला था अपने को cp2 माइनस cp1 अपॉन t इंटू v अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। ये कब मिला था, जब एंट्रोपी सेम था। एंट्रोपी मींस S1 इक्वल्स टू जब अपने S2 लिया था तो अपने को क्या मिला था dp अपॉन dt इक्वल्स टू cp2 माइनस cp1 अपॉन v इंटू t अल्फा 2 माइनस अल्फा 1। cp2 क्या है, cp क्या है अपना स्पेसिफिक हीट है, t इज द टेम्परेचर, v इज द वॉल्यूम, अल्फा क्या था अपना वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन था। ये हो गया अपना फर्स्ट। सेकंड क्या था अपना व्हेन वॉल्यूम आर कांस्टेंट, व्हेन वॉल्यूम इज सेम, कांस्टेंट नहीं सेम सॉरी, दैट इज v1 इक्वल्स टू v2। तो उसके लिए क्या मिला था अपने को, जो अब भी अपन ने देखा है dp अपॉन dt इक्वल्स टू क्या था अपना, ऊपर क्या था अल्फा 2 माइनस अल्फा 1 अपॉन क्या था यहाँ पे kt2 माइनस kt1, वेयर अल्फा इज द फिर से वही है अपना कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन, और kt क्या था अपना आइसोथर्मल कॉम्प्रेसिबिलिटी। सो फॉर द सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन, ये दोनों इक्वेशन क्या बोलते हैं, सेकेंड ऑर्डर फेज ट्रांजिशन भी बोलते हैं, और इसको किसी ने डिस्कवर किया है एरन फर्स्ट ने। तो these two equations are known as the एरन फर्स्ट इक्वेशन, which